फिजिक्स का नहीं ले रहे? Very good evening, students. How are you all? Good evening, ma'am. Okay. Yes, I hope you all have attempted the paper now. Yes, ma'am. Very good evening, Akshita. Who is absent? Karthik is absent. What happened? Why Karthik is so much absent? कहाँ गया? Hostel? Okay, so he won't be joining us back. Okay, which hostel? Okay, Bangalore शिफ्ट हो गया है वो? अच्छा ठीक है, चलिए. So let's continue, students. I gave you some homework also. So have you all completed that? From LDA 3? Yeah, LDA 3. Yes, ma'am. Okay, what Ma'am, but I wasn't able to do one question. okay, which one? You have doubt or you was not able to solve, like you didn't had time to solve? No, I couldn't do it. Okay. Not about time. I'm having actually doubt. Okay, okay, fine. Anjali and Harshvardhan, what about you guys? Have you solved all the... Yes, ma'am. Okay, any doubts so far? No, ma'am. No, very good. Yes, Anjali? Ma'am, I'm not having the idea. तो बच्चा, you should ask me. I just forgot कि आपके पास में नहीं है. Yes, Akshita, tell me which question you have doubt in. I'm checking. Okay. Harshvardhan, as you don't have any doubt, you are going to explain the answer. Be ready. Let me check how much you have grabbed the knowledge. Till then, let me mark your attendance. Ma'am, fourth question. Okay, fourth question, yes. Akash ko invite. Just a second, how to invite him? Ma'am. Yeah, just a second, Harshvardhan. 9th, today we are taking physics. Akash has joined. Very good evening, Akash. Good evening, ma'am. Yes, Bacha, what happened? Why you joined late today? Yes, Akash, I'm asking you something. Ma'am, I was trying to join. Okay, fine. Have you completed the homework? Yes or no? Oh, no, ma'am. Why? You didn't got time or what happened? Ma'am, didn't got time, ma'am, because my exams are from Monday. Okay, from Monday. What's the syllabus you are having in science? Ma'am, on Monday. What is the syllabus in physics and chemistry in your school exams? Ma'am, physics, motion, chemistry is matter around us pure, and biology, the cell, basic unit of life. Okay, fine. One chapter each, right? Yes, ma'am. Same is the syllabus of Excuse me, math. ma'am. Yes, just a second. Yes, Akshita, you saying something? I was saying that same is the syllabus of my school. My exams are also coming soon. Okay, you both are in same schools. No, ma'am. The syllabus is same. No, ma'am. Okay, fine then. I think you can score well because we have already completed the first chapters in all of these, right? But Yes, still, ma'am. if you have any Yes, doubt, ma'am. you can ask me during your exams also, not an issue. Okay, so your exams are commencing from which date? 11. 11th. And what about you, Akshita? 20th. 28th. Okay, fine. Ma'am, 20. 20th. Okay, fine.
Just allow me a minute. ये इतना ज़्यादा zoom आपको Excuse me, ma'am. Yes, Harshvardhan. Ma'am, I was saying that I was having doubt in the last question uh, of the exam that was taken. Okay, like the question paper which you attempted in coaching, right? Yes, ma'am. Okay, okay, fine. So can you tell me the question, because otherwise I need to open up the question paper. Okay, students, do you know how to zoom it out? Because I'm not able to do it. Any shortcut, if you know? Ma'am, I think so. It is control plus zoom in or zoom out. Ma'am, you can do like that. Zoom in, zoom out, tab over here. Ma'am, through the cursor only. If you scroll up, then you can try it like that. No, actually it is not happening on touching pad. Excuse me, ma'am, you can use just like you do in phone. You can just zoom and unzoom by touching the touchpad of the laptop. That I'm trying, but that is not happening actually. So that is why I asked. मुझे आदित्य, आप एक बार करिश्मा मैम के पास जाएंगे? मैम को बोलना जूम इन जूम आउट में इशू आ रहा है मेरे को. अगर सर है तो सर को बोलिएगा. Okay. So in previous class we have discussed about first law of motion. What is first law of motion? Okay, no, no, no. We have doubts. So first, let me take the doubts. Which question? Question number 4. State the various effects of force. This question you have doubt in. And I was talking about chemistry. Chemistry. Today is physics class. Right? Today is physics class. I will be taking chemistry on Sunday. Sunday we have class. Okay? Sir, इसमें issue आ रहा है actually. Zoom in. Okay, so let's continue. Question number 4. You were asking of chemistry, right? Yes, ma'am. Okay, so chemistry from any question paper or exercise route only? I'm from LDA 3. Yeah, LDA 3. I don't have LDA. Can you tell me the question? Ma'am. Comment upon the following. Part 1. Smoke and fog are aerosols. Okay, aerosols. Yeah, aerosols we have discussed, no? So क्या होते हैं aerosols? Smoke and fog. Anyone remembers what are aerosols?
एयर एयर, एरोसॉल्स। मैन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? Do one thing, I'm giving you homework that on Sunday we have class, chemistry class. So till then just go through the topics. Like we have completed the test up to this topic only, right? This topic was not included in your previous test. So for that, what you need to do is today's homework would be for chemistry that you should revise the topics which we have already covered up after the test. Okay, so I will be asking you questions from the same only because I guess we have already almost completed the chapter. So next class में वैसे भी मैं आपका surprise test लेने वाली हूँ class में. So make sure that you are revising the topic. वहाँ पर हमारे जो भी chemistry के doubts हैं so far either in exercise or from any of the topic we will be taking into that only. Coming to हर्षवर्धन. हर्षवर्धन आपका कौन से chemistry का doubt है या physics का? Physics. Physics. Okay, ask it. I don't know the question. From question paper. Yes, ma'am. हाँ, हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया है. Who is left who hasn't attempted the physics test? किसने अटेम्प्ट नहीं किया? मुस्कान, आपने नहीं दिया है टेस्ट. What about you, आकर्ष? बच्चा, आपने दिया एग्जाम? यस मैम, दिया है. कि हर्ष की आंसर शीट आ गई है मेरे पास में, आकर्ष की भी आ गई है, एंड अक्षता, अंजलि both have shared. Fine. ठीक है. So yes, tell me the question. Which question you are having doubt in? Last question. Okay, I too need to open the question paper first. Just a second. Okay, question number 14. What about other students? सबको डाउट है? आदित्य, आपको भी डाउट है? What about Akshita and Anjali? Do you have doubt? Ma'am, just a second. Okay, question number 14. How was the paper, by the way? Was it difficult or easy or moderate? Yes? It was moderate. Moderate. Okay. What about you, Akarsh? मैंने आपके आंसर शीट अभी चेक नहीं किया. Today I will be checking. So that is why I am asking. I don't know how you have attempted. So that is why I am not discussing too, because क्या है ना कि मुझे पता नहीं है आपने कहाँ पे गलती की. तो अकॉर्डिंगली मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना होगा. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग द होल क्वेश्चन पेपर. बट अगर आपको डाउट है, सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14 ओनली टुडे. मैम क्वेश्चन नंबर 9 also 9 also. क्वेश्चन पेपर, ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 14 ma'am. भी है एंड 9 भी है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट टेक क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आप लोग के पास में अगर क्वेश्चन पेपर है सो यू कैन ओपन इट. आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है? अच्छा, यहाँ पर आ जाइए आदित्य. आप बच्चा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, बैग पीछे रख दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड. दैट मीन्स दिस इज द बॉल. ध्यान से सुनिएगा मुस्कान, बिकॉज आपने आई थिंक ये टॉपिक कवर अप नहीं किया है, तो अभी समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं. सो देयर इज अ पर्सन हु थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड. ये बॉल कहाँ जा रही है? वर्टिकली अप, ऊपर जा रही है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. बताइए वेलोसिटी यहाँ पे u या फिर v, दोनों में से कौन 20 मीटर पर सेकेंड है? u. इनिशियल वेलोसिटी. सो 20 मीटर पर सेकेंड. क्या हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो कैलकुलेट हाउ हाई इट गोज. फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करनी है? हाइट. हाइट कौन सी? हाउ हाई, मतलब मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है, राइट? सो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है. कौन सी? बताइए. टेल मी. Second equation. मोशन यूज कर. We can use two equation of motion, I guess. 3, all the 3 we have. चलिए फटाफट देखते हैं कौन से यूज करेंगे. फर्स्ट इज v इक्विवेलेंट टू u प्लस gt. क्या ये यूज करेंगे?
नो, क्योंकि हाइट तो कहीं आ नहीं रही है यहाँ पर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? एस। एस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जब वर्टिकल मोशन होता है तब हम क्या मानते हैं, उसको हाइट मानते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या फिर पोजीशन मानते हैं, राइट। तो अभी हम क्या लिखेंगे, एच इक्विवेलेंट टू क्या होती है सेकेंड इक्वेशन, एस इक्विवेलेंट टू ut प्लस हाफ। ए की जगह पे जब ये वर्टिकल मोशन होता है तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर, g से, राइट। सो दैट इज बाय gt²। ओके, नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, हमें क्या ध्यान रखना होता है कि ये g की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। यहाँ पर बताइए मोशन कहाँ है, मोशन अपवर्ड है, राइट, मोशन इज अप। ग्रेविटी कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड होती है हमेशा। सो दोनों अपोजिट है, सो जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये बोथ क्या है, दी बोथ आर अपोजिट, सो दैट इज व्हाई एक्सीलरेशन वुड बी माइनस जी। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं दैट मीन्स ऊपर से अगर बॉल नीचे गिरेगी तब एक्सीलरेशन की जगह पे प्लस जी यूज करेंगे। सो दैट मीन्स हम इसको यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। बट क्या यहाँ पे हमें कहीं पे भी टाइम का कुछ भी मेंशन है, नहीं मेंशन है। और यहाँ पर तो हमारा टाइम भी आ रहा है, हमें टाइम भी नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता है, एच भी नहीं पता है, राइट। सो दैट इज वाई हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में स्टडी किया, अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन है और उसमें से अगर हमें कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी वेरिएबल की, तो अदर सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, राइट, तभी आप उसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करते हो। सो दैट इज वाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड। थर्ड क्या बोलती है, v² इक्वल्स टू प्लस 2as, तो gh हो जाएगा, राइट। सो दिस इक्वेशन वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व। सो लेट्स यूज द, अच्छा यहाँ पर बताइए मैक्सिमम हाइट बोला है हमें, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पर, आकर्ष, जीरो होगी मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी वुड बी 0 मीटर पर सेकेंड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। ये बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है, dt टाइम पीरियड के लिए। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या कर देगी, जीरो वेलोसिटी के बाद में वापस नीचे आने लग जाएगी, बिकॉज अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो अब उसको कौन पुल करेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ पुल करेगी। सो दैट मीन्स इट विल बी फॉलिंग ओनली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ whom, अंजलि, किसके इन्फ्लुएंस पे मूव कर रही है अब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के बाद? Yes, Ma'am, repeat. I am asking you कि when the object has reached the maximum height, after that the object will start falling downward. So when the object is falling downward, it is moving along whose influential force? Ma'am, gravitational. या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, एंड ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड आएगी। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको एक नाम दिया था हमने, इफ यू रिमेम्बर, आकर्ष, what is the name of the term when object is falling only and only under the influence of earth's gravitational force? यस आकाश बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यस मैम। बताइए क्या नाम होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का? आर यू देयर? यस मैम। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो टेल मी दैट आंसर नहीं आ रहा है, सो दैट आई कैन मूव ऑन और आई कैन पास ऑन टू अनदर स्टूडेंट। बट अगर आप बिल्कुल चुप बैठे रहेंगे, नहीं आ रहा। आएगा नहीं आ रहा है, ओके फाइन। हर्षवर्धन, थैंक यू भैया। यस, रिटार्डेशन। नो नो नो, नॉट रिटार्डेशन। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं मुस्कान? आदित्य कितनी बार आपको हेल्प कर रहा है, बता रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नो, फ्री फॉल बोलते हैं। अक्षिता, क्या आपको ये आंसर आता था? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड।
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ रही होती है और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा होता है, तब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में कहलाती है। और फ्री फॉल कंडीशन में हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सीलरेशन कितना होता है? ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होता है हमेशा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? हर्षवर्धन एंड अदर स्टूडेंट्स, कैन यू सॉल्व Yes, दिस ma'am. क्वेश्चन नाउ? Yes, क्या ma'am. आपको पता है यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। v हमें पता चल गया है 0, u हमें 20 गिवन है, g की वैल्यू हम क्या यूज करने वाले हैं बताइए? 9.8 मीटर पर सेकेंड। का स्क्वायर u स्क्वायर, सो 20 स्क्वायर प्लस 2, g की जगह पे हम माइनस यूज करेंगे, माइनस 9.8 इंटू हाइट h हमें फाइंड आउट करनी है। सो 20 स्क्वायर वुड बी माइनस 400। यहाँ पर कितना होगा हमारा? माइनस 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी वुड बी गेटिंग 8 2 टाइम्स 16, 6 1 9 2 18, 19.6 आएगा इंटू एच। दिस नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट, 400 डिवाइडेड बाय 19.6 इक्विवेलेंट टू एच। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर किस में आएगा? हाइट यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मीटर में मेंशन है। ठीक है, अच्छा अगर आपको यहाँ पे गिवन है कि आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होता तो ग्रेविटी अगर हम 10 यूज करते, या तो हम इसको 10 भी यूज कर सकते थे, तब यहाँ क्या हो जाता? 20 हो जाता, राइट? तब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते 20 से, तो 20 से डिवाइड करते तो इजीली आंसर आ जाता, 0 0 कैंसल एंड 2 20 आंसर आता ये। सो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट आंसर आपका क्या आने वाला है? 20 समथिंग, राइट? I hope it is clear. Next, what is being asked, how long the ball is in it before it comes to his hand? Before it comes to his hand. Okay. So let's understand this. Second part में आपसे पूछा गया है कि how long the ball is in air होना था। I think ये misprint होगा। B part. How long in air? Basically this is they are saying how long in air before coming hand. So tell me which physical quantity they are asking about? कौन सा physical? Exactly, टाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने टाइम तक वो एयर में रहेगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ टाइम या फिर कुछ ट्विस्ट है यहाँ पर? कैन यू आइडेंटिफाई द ट्विस्ट? सिर्फ टी नहीं निकालना है यहाँ पर हमें, बताइए। Is there any student who has attempted this question? Akshita, have you attempted? Yes, ma'am. Okay, so you have simply calculated T. I don't remember. What about you, Anjali? Ma'am, I have calculated speed also. You calculated Speed also. speed also and time also. Both the two things you have calculated, right? Yes, ma'am. Okay, what about you, Akash? आपने क्या calculate किया है बच्चे इसमें? Speed. Speed नहीं बच्चा, यहाँ पे बोला था how long. How long का मतलब ये क्या represent कर रहा है? Time. So how long it is in air बिफोर कमिंग इन टू हैंड। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है। बॉल जो है यहाँ पे पहले कहाँ पे थी? हैंड में थी, राइट? हैंड से उसने क्या करी है? अपवर्ड थ्रो करी है। सो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाने पे एक टाइम लगेगा, राइट? फिर वापस आएगी तब भी क्या लगेगा? सेम टाइम लगेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट इज इक्विवेलेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट। हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम। अगर हम टाइम ऑफ एसेंट को क्या मान रहे हैं? सपोज टी मान रहे हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सो टाइम ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो टी। ये आपको समझ में आया मुस्कान? देखिए इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट पे जाने में जितना टाइम लगाएगी
उतना ही टाइम उसको वहां से वापस नीचे आने में लगेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे क्या हो गया, एसेंट और डेसेंट 2 टाइम हो गया। तो ऑब्जेक्ट हैंड से ही थ्रो करी थी, तो जैसे ही हैंड से थ्रो हुई ऑब्जेक्ट एयर में हो गई और वापस आपको सेम ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पे आना है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 2 टाइम्स ऑफ टी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब टी आप कहाँ से निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, यस और नो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, राइट। v मैक्सिमम हाइट 0 है, सो हमने यहाँ पे 0 हाइट पुट कर दी। u इज 20 प्लस g की वैल्यू यहाँ पे हम अगेन -9.8 यूज करेंगे, ठीक है। देन t, so let's solve it, -20 equivalent to -9.8 t, so minus minus got cancelled. So next if we will solve it we will be getting somewhat 2 आएगा, approximate value 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है। सो इट वुड बी समथिंग, व्हाट वुड बी द यूनिट, सेकंड में होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें मीटर पर सेकंड में ही गिवन है u, राइट। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, 2 टाइम्स ऑफ t, सो दैट मीन्स जो भी आपकी t की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड में। आई होप इट इज क्लियर। Please repeat the last step. Okay, see in this question it is asked that how long the object is in air, so that means जितना वो maximum height पे जाने पर अगर time t लगा रही है, so maximum height से वापस hand में आने में भी same t time लगेगा, because time of ascent is equivalent to time of descent. So हमने first equation of motion से सिर्फ time calculate किया है t, बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, 2 टाइम्स ऑफ t, क्योंकि जाना प्लस आना दोनों का टाइम कैलकुलेट होगा यहाँ पर, टोटल टाइम। सो दैट इज वाई लास्टली हम t को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2। Yes, अगर आपसे पूछा जाता दैट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट, तब आपको सिर्फ कहाँ तक जाना था, सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करना था। बट अभी आपसे पूछे कितने टाइम तक एयर में रह रही है, सो दैट इज वाई 2t। ओके, व्हाट एल्स, क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो, ठीक है। रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ऑफ ऑल and then you tell me what could be the possible solution, then I will be explaining it. अभी सिर्फ 6-2 हुआ है, टाइमिंग रॉन्ग है लैपटॉप में। ओके, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू नोट इट डाउन, और आपने नोट नहीं किया है देन टेल मी, अदरवाइज वी विल बी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। All of you just read out the question number 9. Again there is a stone, and it is dropped freely in the river from a bridge. ब्रिज से आप नीचे थ्रो कर रहे हैं एक स्टोन को। It takes 10 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। कितना टाइम लग रहा है उसको, 10 सेकेंड लग रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाने में, बताइए। एग्जैक्टली, ब्रिज से आपने उसको थ्रो किया तो ब्रिज से रिवर तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। दैट मीन्स अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने टी फाइंड आउट करा था वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला गया, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है, हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ये अटेम्प्ट किया आदित्य आपने, नहीं किया? हु हैज अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन नंबर 9? Let's write the information first. हमें क्या information given है? Try to think about it. कौन सी equation of motion लग सकती है? See, जब आपके पास में given होता है, आपने लिख लेते हैं already कि क्या क्या information आपको given है, तो बहुत easy होता है find out करना कि कौन सी equation of motion लगेगी, right? So हमेशा make sure that every time you are writing the given things while solving a numerical. जब तक सारी information आप लिखोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा formula कौन सा use करना है हमें। So let's write question number 9. This is the bridge and this is the stone which is dropped at a water level. This is the water level. How long it take? It take 10 seconds to reach from this to this.
वी आर कंसीडरिंग द वाटर लेवल सरफेस एज अ प्लेन सरफेस, ठीक है, हम इसको प्लेन सरफेस की तरह मान रहे हैं in spite of considering it in the wave form. Tell me in this question, u would be 0 or v would be 0? Yes. V final velocity. Do you think water में जाने के बाद में जो stone है वो stop हो जाएगा completely, सिर्फ ऊपर surface पे float करेगा? अक्षता? U will be 0. Yes, exactly. जब आप पानी में ड्रॉप करेंगे तो जब तक वो सी बेड पर नहीं जाएगा इट वॉन्ट स्टॉप, राइट? सो दैट इज वाई वी कांट से कि वाटर लेवल, अच्छा अगर इन स्पाइट ऑफ वाटर लेवल अगर हम यहाँ पे यूज करते ग्राउंड, इफ यू आर थ्रोइंग और यू आर प्रोजेक्टिंग अ थ्रोन डाउन ऑन द ग्राउंड, उस केस में हम क्या कंसिडर कर सकते थे फाइनल वेलोसिटी को? 0. बट वहां पर भी कुछ कुछ केसेस होते हैं, वहां पे एक कंडीशन आ जाती है कि जो सैंड भी होती है, सैंड आल्सो कंप्रेसेस, डू यू नो? जब आप स्टैंड पर सैंड का, सपोज देयर इज अ हीप ऑफ सैंड, हम इसको ऐसे आइडियलाइज करते हैं इस सिचुएशन को, सपोज ये सैंड का हीप है हमारे पास में, अगर आप इस पे जंप करोगे तो क्या होगा? क्या आप सडनली 0 वेलोसिटी पे आ जाओगे? नो. क्या होगा? ये नीचे जाएगी थोड़ा, राइट? डिप्रेशन होगा. सो दैट मीन्स सडन 0 वेलोसिटी नहीं होगी on touching this surface. So it depends कि आपका यहाँ पे क्या मेंशन है क्वेश्चन में, या तो आपको ऑलरेडी मेंशन हो कि that a object is projected downward with a velocity of this and that, तब आप वेलोसिटी को 0 माने. बट अगर ऐसा सिनेरियो दे दिया है जहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आप हाथ से ड्रॉप करें, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली किस में था? रेस्ट पर था. तो इस केस में हम हमेशा u को 0 कंसीडर करेंगे, राइट? I hope it is clear that how to choose the velocity's value. Yes, Akshita, you were saying something. Okay, now let's try to solve this. यहाँ पर v not equal to 0 because ये नीचे जाएगा stone. So let's find out हमें क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? Height of the bridge from the water level. We need to calculate this height. Okay, so let's see, v equivalent to u plus gt. Can we solve it? Can we use this? Yes or no? अंजलि, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड h? Yes. No. No, we can't use it. Why? Ma'am, because height is not given in the formula. हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट. सो लेट्स सी what the second equation of motion. Can we use the second equation of motion? h equivalent to y, no, plus half gt square. क्या हम इसको यूज नहीं कर सकते? Why? बताइए. u हमें गिवन है 0, टाइम हमें गिवन है, g हमें पता है वैल्यू क्या होती है. अच्छा यहाँ पर बताओ g की वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे? पॉजिटिव g होगा या माइनस g होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो भी कहाँ है? डाउनवर्ड, और जो ग्रेविटी है वो भी क्या है? डाउनवर्ड. सो दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव. So students, can we use this equation? Yes, we can use this equation because यहाँ पे हमें क्या given? अच्छा, let's check about this one. क्या हमें यहाँ पे sorry 2gh, right? क्या हमें यहाँ पे v known है? यहाँ पे v नहीं पता है और हमें h भी नहीं पता है. So that is why we can't use this equation. अगर इस equation को use करना है तो पहले फर्स्ट वाले equation से v निकालो, फिर इसको इसमें डालो, फिर h निकाल पाओगे, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे. सो लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू दिस. हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, u इज 0, तो ये फर्स्ट टर्म पूरी 0 हो जाएगी. 0 इंटू टाइम 0 प्लस हाफ g
इज इट मेंशन क्या वैल्यू यूज करनी है? 9.8 यूज करनी है हमें. सो 2 into 9.8 and square of 10, that means 100. Let's solve it. ये I think we can do this. ये डिडक्ट हो जाएगा. 2 4 times 8 आएगा, then 9 times 18, right? So 4.9 into 100. So what we will be getting? 490 मीटर. और what? यूनिट क्या होगी बच्चा यहाँ पे? मीटर, राइट? हाइट किस में होगी? मीटर में होगी यहाँ पर. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है हमने. द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इन द लास्ट सेकेंड. The distance covered by stone in the last second. Okay. How you will be calculating this? I think ये आपके लिए problematic हुआ था. यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा second part में. First part किसने solve किया है इसमें? Excuse me, ma'am. Yes. Here you have taken time as 10 seconds, but in the question I have taken 2 seconds. So could you please check with the question? Because I'm not having the question paper now. In question paper it is mentioned 10 second only. Okay, that means I have noted wrong. Okay. So, but still I will give you marks for only the formula. I can't give you mark for this because you have made the whole thing wrong, right? Ma'am. Okay, now let's see. In B part, they are asking the distance covered by stone in last second. So distance. Tell me about this. ये कैसे solve करेंगे हम? Anyone? Having Took any time idea? is 1. Yeah, exactly. Stone in last second. So that means last second में हमें क्या find out करना है यहाँ पे? Height find out करनी है basically. Distance means height only we have to find out over here. So I hope you can calculate this. Okay, tell me, we would be using 1 second or we will be using 9 second over here? Think about it. I'm 1. 1. Why? In the last Because second they are saying. But start में तो हमारा start में होता है first second तो. So height तो यहाँ पे gradually जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे क्या increase हो रहा है? Time increase हो रहा है तभी तो height gradually decrease हो रही है. So ideally यहाँ पे क्या होना चाहिए? Time कितना हो जाएगा last 1 second में? Total कितने time already complete हो चुका होगा? 9 seconds complete हो चुका होगा. So that means now you have to think. ये आपका tricky चीज़ है. ये मैं आपको as a homework दे रही हूँ. Do the research and tell me in the next class कि हम 9 use करेंगे या 1 use करेंगे. Okay? And after that you have to solve it also. यहाँ पे I think you can find out the height. कौन सा formula लेंगे? कोई भी formula हम यहाँ पे use कर सकते हैं. Fine? I hope it is clear. yes, ma'am. वो check it. कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे? 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास में, दिस और सेकेंड वन, v स्क्वायर इक्विवेलेंट टू u स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर. नाउ only 15 minutes are left. Let's try to cover up the chapter. And don't make any excuses because बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया है आज मैंने आपको. जस्ट एक आपको रिसर्च करनी है, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन. गो थ्रू द एक्सरसाइज इफ यू नीड हेल्प फ्रॉम दैट. कल जल्दी जाना है बट बच्चा इतना होमवर्क नहीं दिया मैंने आपको. ओके, यहाँ आकर भी कर सकते हो. Let's get back to the chapter. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? What is the another name?
लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है, फटाफट टेल मी। 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है हर्षवर्धन? मैम इनर्शिया ऑफ मोशन, Ma'am, laws इनर्शिया of ऑफ motion, direction. ओके एंड Ma'am, direction. मैम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड रेस्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहेगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मेक श्योर दैट एवरी टाइम व्हाइल यू आर आंसरिंग सच क्वेश्चंस, आपको रीजनिंग में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको ध्यान देना है कि इनिशियल उसका स्टेट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपका आंसर होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनिशियल स्टेट यू हैव टू चेक, डोंट गो विद द फाइनल स्टेट ऑफ वहां पे, बिकॉज फाइनली तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तब उसको जर्क लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको हमेशा कौन सी चीज देखनी है, इनिशियल कंडीशन देखनी है। जब भी हमारा कर्वी पाथ आएगा हमेशा क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आएगा। जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसका रीजन होगा क्वेश्चन का। और जब भी मोशन में होगी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट initially, so the answer is going to be inertia of motion. Now let's get back to the next topic, which is momentum. Do you know what is momentum? Have you ever heard this term? नहीं सुना है? चलिए आज की हेडिंग डालिए मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल p। ठीक है, स्मॉल p से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, so in the previous classes we have discussed, suppose there is an object which is having mass m and suppose it is moving with certain velocity v, right? So if you want to stop this object, what do you need to do? What we should be doing in order to stop this moving mass m having certain velocity v? बताइए क्या करेंगे आप इसको स्टॉप करने के लिए? You don't have to, you know, take the weapons or guns or anything else. कैसे रोकेंगे? सिंपल सा आंसर है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक बॉल आपके पास आ रही है, ठीक है? सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी स्टैंडिंग लाइक दिस ओनली इन द अटेंशन पोजीशन। तो क्या करेंगे आप? इट कैन हिट यू, यू विल स्टॉप इट बाय, बट हाउ? मैम बाय कैचिंग इट। By catching it, so that means you will be applying force against its motion. कैच करने का मतलब क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो उसको स्टॉप करने के लिए, राइट? कैचिंग इज नॉट जस्ट लाइक कि आप उसको पकड़ रहे हो, पकड़ने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, फोर्स रिक्वायर्ड होगा। सो दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है एंड इफ इट इज हैविंग अ सर्टेन वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, सो वी ऑलवेज नीड अ अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, राइट? टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट, राइट? तो ये कितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमें चाहिए है उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट आपके पास आ रही है, राइट? उसको अगर आपको स्टॉप करना है तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा या कम? ज्यादा। अगर मास ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का और आपको उसके मोशन को स्टॉप करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस, व्हाट हैपेंड? ज्यादा लगेगा, राइट? अगर आपके पास में स्मॉल मास ऑब्जेक्ट है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। ओके, नाउ लेट्स चेक विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने समझा कि अगर m ज्यादा है, अगर m ज्यादा है, सो फोर्स रिक्वायर टू स्टॉप इज ऑल्सो मोर। अभी आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है मुस्कान। सो f रिक्वायर्ड टू स्टॉप विल ऑल्सो बी मोर, राइट? और अगर मास लेस है, so force required to stop will also be less, so that means small, right? Similarly, let's check with the velocity. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा फास्ट आ रही है ऑब्जेक्ट, तो आपको जो फोर्स चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए वो ज्यादा होगा या कम होगा? बताइए। बहुत फास्ट आपके पास में बुलेट ट्रेन आ रही है, हल्का सा फोर्स लगाओगे, फिंगर लगाओगे, रुक जाएगी? अगर आप पूरा फोर्स लगा दोगे अपना तब भी रोक पाओगे उसको? नहीं रोक पाओगे, राइट? सो दैट मीन्स अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और आप फोर्स लगाओगे उसको स्टॉप करने के लिए तो क्या होगा, बहुत लार्ज फोर्स चाहिए आपको स्टॉप करने के लिए। सो दैट मीन्स ईदर मेट्रो ट्रेन आ रही है और अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो इस साइड से भी एक और मेट्रो ट्रेन चलाओ जो अपोजिट स्पीड में जा रही हो, दोनों की इक्विवेलेंट स्पीड होगी तो तभी चांसेस है कि वो कोलैप्स होंगे। हालांकि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन वगैरह होगा, बट इट कैन बी स्टॉप्ड।
बट अगर आप सोचिए कि आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, इट विल स्टॉप, इट वोंट बी स्टॉपिंग, राइट। अगर आप वहां पर एक बॉक्स रख देंगे छोटा सा, इट वोंट बी स्टॉपिंग। अगर आप अपनी साइकिल रख देंगे, इट वोंट बी स्टॉपिंग। बाईसाइकिल रख देंगे तब भी स्टॉप नहीं होगी, राइट। सो दिस थिंग, डोंट एवर ट्राई टू डू सच थिंग्स, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। सो अगर स्पीड स्लो है, दैट मीन्स अगर सिमिलरली आपके सामने एक बाइकल आ रही है, ठीक है, नाउ कैन यू स्टॉप दैट बाइसाइकिल? अगर कोई उसको फास्ट भी चला रहा है तो you have that potential. So in this scenario we need small force, right? So can you tell me one thing कि यहाँ पे हमें जो force लग रहा है ऑब्जेक्ट को stop करने के लिए, वो mass of the object and velocity of the object के directly proportional है या indirectly proportional है? बताइए। Directly. proportional Directly. क्या होता है? Okay, fine. Directly proportional का मतलब क्या होता है? अगर दो क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट? That if one will increase, then another will also increase. या एग्जैक्टली, दैट मीन्स अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो इस टाइप का रिलेशन, इट इज जस्ट लाइक बहुत ज्यादा टू क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो बाहर जा रहा है तो मेरे को भी बाहर जाना है, एंड इफ ही इज टेकिंग और शी इज टेकिंग ऑफ तो आज मेरा भी ऑफ है स्कूल में। ऐसे बच्चे होते हैं ना क्लास में, कुछ आपने देखे होंगे, अच्छा आज नहीं आ रहे हो, ओके फाइन, मैं भी नहीं आ रही यार, फाइन। सो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दैट मीन्स यहाँ पर मास और फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो वी कैन से एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रिक्वायर्ड टू स्टॉप। थैंक यू भैया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, एफ रिक्वायर्ड टू स्टॉप। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज अभी हम जस्ट समझ रहे हैं कि क्यों हम ये कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं मोमेंटम। अभी तक हमने मोमेंटम के डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करी है, राइट। सो इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग टू एक्सप्लेन यू। सो बेसिकली वी अंडरस्टूड कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है या फिर मोशन में होती है, हमेशा उसको स्टॉप करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस मोमेंटम? Now you have to write the definition of momentum, that it is the product of mass and velocity of an object. Okay, so this is the first definition of momentum. There is another definition also which you can write, or we can write that the quantity of motion possessed by moving object is also known as momentum. And right now I told you that the force required for this, किसी भी मोशन को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोमेंटम पे, राइट। सो दैट इज व्हाई मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पर, अच्छा ये जो फोर्स हम स्टॉप करने के लिए या फिर अनस्टॉप करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे मैटर कर रहा है, और साथ ही साथ में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज व्हाई जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास एंड वेलोसिटी पे। अच्छा, जो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप था वो इन दोनों की क्या था, डायरेक्टली था या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली था। तो मोमेंटम भी क्या होगा, इन दोनों क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो दैट मीन्स momentum is directly proportional to the mass of the object and momentum is directly proportional to the velocity of the object. So if we combine these two terms, अगर first और second को हम combine करें, so what we will get, it is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज, ठीक है। सो वी कैन से P इज इक्विवेलेंट टू mb। हम क्या लिख सकते हैं, जो P होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, मास एंड वेलोसिटी के। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर बताइए मास क्या है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar. Okay. Do you know the difference, Muskan, between scalar and vector quantity? क्या होती है? भूल गए हो? आदित्य हेल्पर। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट सही दिया है, बट डू यू नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड मुस्कान? मैग्नीट्यूड का मतलब पता है क्या होता है? डोंट नो? आदित्य नहीं पता आपको भी? यस आकर्ष, बच्चे क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? ओके, अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सी मुस्कान, अगर हमने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, ठीक है, तो ये जो 5 है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 5। डू नॉट हैव टू टेल यू 5 न्यूटन या 5 एन, नहीं, सिर्फ क्या होगा, 5 द न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो है हमारा, ये क्या होता है, एन, ये क्या हो गई, मेजरिंग यूनिट, ठीक है। सो मेक श्योर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स के अंदर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मींस मैग्नीट्यूड एंड अलोंग विद इट्स मेजरिंग यूनिट हम हमेशा मेंशन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो हमेशा आंसर किस में लिखोगे, मेजरिंग यूनिट के साथ में लिखोगे। आई होप इट इज क्लियर। सो जो मास है, यस हर्षवर्धन यू वाज करेक्ट, मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर यहाँ पर मेरा वेट 47 आ रहा है, सो इवन इफ आई विल गो टू माय होम एंड इफ आई विल बी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, मेरा मास 47 ही आएगा, राइट। सो दैट मीन्स मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई लिंकअप नहीं है। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन बतानी होती है कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। So that is why since velocity is a vector quantity, that is why momentum will also be a vector quantity. So we can write, इसीलिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिजिक्स में, इधर हम उसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उस पे क्या बनाते हैं, एरोज। So that is why we will say that momentum is a vector or scalar quantity. Vector quantity. It is a vector quantity because velocity is also a vector quantity. ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस, टाइम अप हो गया है क्या? आज लैपटॉप में इतना गलत टाइमिंग शो हो रहा है। ओके, लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप द क्लास। ओके, कैन यू टेल एनी ऑफ द एग्जाम्पल? नो? ओके, हैव यू सीन, जब आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर सपोज इफ आई एम थ्रोइंग अ बॉल और मैं बहुत ही हैवी, देयर इज अ डिफरेंस, सपोज देयर आर 2 बॉल्स, एक बॉल है आपके पास में क्रिकेट बॉल और दूसरी बॉल है आपके पास में टेनिस बॉल, टेल मी किसका ज्यादा मास है? मैम क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल हैवी होती है ना, कॉक या किससे बनती है वो, और जो टेनिस बॉल होती है वो होलो होती है अंदर से, सो वो लाइट इन वेट होती है। अगर मैंने आपके पास में दोनों सेम वेलोसिटी से थ्रो किए हैं, सपोज क्रिकेट बॉल भी 50 मीटर पर सेकेंड से और जो आपकी टेनिस बॉल है वो भी 50 मीटर पर सेकेंड से, बताइए किसमें आपको मतलब क्या होने वाला है, पहले तो ये बताइए क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप? The heavier ball will go faster than the lighter ball. Heavier will go faster. Heavy Yes. चीज फास्ट जाती है, लाइट वेट ज्यादा फास्ट। मैम leather ball goes लाइट fast. वेट, लाइट वेट। अच्छा, what I told you is कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो फिर तो ये तो आएगा ही नहीं, दोनों सेम ही स्पीड से जा रही है, और क्या हो सकता है?
जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके सामने सपोज अगर या तो आप इसको एज अ कैच समझ लीजिए, अगर मैंने आपको कैच करने के लिए 2 बॉलें दी है, सेम स्पीड से आ रही है, फास्ट स्पीड है दोनों की, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है एक टेनिस बॉल है, क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप, क्या होगा आफ्टर कैच? नहीं समझ में आ रहा है? इन स्पाइट ऑफ कैचिंग कंसीडर इट इज योर फेस, क्या होगा? नहीं, कैच कैच में आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने पिट्ठू खेला है संतोलिया बचपन में कभी? नहीं खेला है, ठीक है, खेला है। हिट करते हैं, राइट? अगर जो बॉल होती है वो हार्ड होती है तो उससे क्या होता है? मैं ज्यादा गिर जाता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास में पत्थर है और एक है पेपर, पेपर को मैंने वो रोल कर लिया, अभी मैं दोनों से आपको मार रही हूँ, दूर से आई एम थ्रोइंग इट, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस, और क्या आपको समझ आएगा? पत्थर जोर से लगेगा और जो पेपर है वो धीरे से लगेगा, ठीक है। तो अगर हम कैच करेंगे दोनों को, तो कैच करने के लिए ज्यादा किस में फोर्स लगेगा रोकने के लिए? पत्थर को रोकने में ज्यादा दर्द भी होगा आपको उसमें, राइट? सो आंसर यही होना था, आपको यही बताना था कि जब हम कैच करते हैं, हैवी चीज को कैच करते हैं, तो ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उसको स्टॉप करने के लिए, राइट? सो दैट मीन्स मोमेंटम क्या होता है वहां पे? ज्यादा। अच्छा, ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मास ज्यादा है वहां पे। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि मोमेंटम के फॉर्मूला में क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी, और जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी, राइट? तो मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, सो दैट मीन ज्यादा फोर्स चाहिएगा आपको। अच्छा, दूसरा हम समझते हैं क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल में भी आपने देखा होगा, जब बहुत फास्ट स्पीड से जब बैट्समैन हिट करता है, उस बॉल को कैच करते हैं तो ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उसको स्टॉप करने के लिए, एज कंपेयर टू नॉर्मल कैच। अगर मैं नॉर्मल कैच दूंगी तो इजी हो जाता है, बट जब आप बैट से हिट करते हो तो उसको कैच करने में बहुत ज्यादा वो एफर्ट लगता है। सो राइट दीज एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर मोमेंटम। सो दैट मीन्स first is it is easier to catch a tennis ball compared to catching a cricket ball. If they both are, अच्छा, अगर हम उनको सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तब क्या इसमें कुछ चेंज आएगा? बताइए, हैवी ऑब्जेक्ट को कैच करने में ज्यादा फोर्स लगेगा या फिर लाइट वेट? हैवी में सेम। सो दैट मीन्स या अगर आपको हॉरिजॉन्टल कैच करना है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, इन द बोथ सिनेरियो द थिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आंसर हमारा सेम रहने वाला है, इफ ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। And the second example is catching a higher velocity object is more difficult as compared to catch लाइटर ऑब्जेक्ट। तो हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मास वाला भी, मास ज़्यादा होगा तब भी ज़्यादा फोर्स लगेगा, और अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तब भी ज़्यादा फोर्स लगेगा टू स्टॉप इट, टू कैच द लेस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आस्क मी, अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। नो डाउट। हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ 5 मिनट में, ठीक है? ओके, फाइन। Okay, so this is all for today, students. Should I give you any numerical questions for homework? मैम दे दूँ? आदित्य बोल रहा है मैडम दे दो।
हर्षवर्धन नहीं why? अच्छा, पाँच नहीं। one thing, I'm not giving you too much question, सिर्फ 2 क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है? नो मैम। बच्चा 5 का भी क्वेश्चन या आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो अभी। न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, P = mv वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये तो आपको दैट मीन्स छोटे बच्चे की तरह मल्टीप्लिकेशन करना है। बिफोर आई जॉइन द क्लास विद इन अ मिनट आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ओके? Okay, so this is all for today, students. Thank you. Have a nice day. Do revise the topics which we have already covered up in this chapter, because next week में हमारा टेस्ट इसी चैप्टर का होगा। फिजिक्स का टेस्ट होगा क्या? और फिजिक्स का टेस्ट अभी हुआ है ना आपका? बैक टू बैक मैम 3 वीक से हो रहा है। नेक्स्ट वीक में हम केमिस्ट्री का लेंगे, ठीक है? Okay, bye everyone. Show You the can leave the screen class. for once. Submit the LDA. What, Anjali? LDA? Okay, I will share you after reaching the home. Like till 8 o'clock, I will be sharing you. Yes, Akshita, you want to say something? Ma'am, please share the screen for once. Okay. Yes, Harshvardhan, you can leave if you have noted. I'm taking screenshot. Thank you, ma'am. And Muskan, have a good day. Okay, have you all noted?